Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to EduEcon. I am Prachi Sachdev. In today's lecture, we will be discussing about factors affecting price elasticity of demand. So, what are the factors that affect price elasticity of demand? These are the 8 points which we will be discussing today, and you have to stay tuned to in the whole video so that at last I will be telling you all the mnemonics of all these points. Okay, mnemonics means the easy remembering of all these points, how we can easily recapitulate all these points in one go. ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी एकदम लास्ट में, तो stay tuned for the whole video. Fine, let's start. Okay, before starting also I also want to explain two things to you all. One is elastic and another is inelastic. We have already discussed in the last class what is elastic demand and what is inelastic demand. If you have not seen, please see. Still, thoda sa explanation I will give you, because this will be helping you in all these points. These two things will be helping in all these points. Okay. So elastic demand means elasticity will be in the demand and not in price. डिमांड में इलास्टिसिटी हो रहा है. इलास्टिसिटी किस पे हो रहा है? डिमांड में. एंड इन इलास्टिक डिमांड मीन्स इन डिमांड में इलास्टिसिटी नहीं हो रहा है, प्राइस में इलास्टिसिटी हो रहा है. समझे? लेट्स सपोज इफ प्राइस हैव बीन डिक्रीज्ड बाय 10%, द क्वांटिटी डिमांड विल बी इंक्रीज्ड बाय 15%. क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगा कंपैरेटिवली प्राइस से. प्राइस 10% घटा है तो क्वांटिटी डिमांड 15% बढ़ जाएगा. क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो रहा है. इलास्टिक. ओके, इन इलास्टिक के केस में जब प्राइस हमारा 10% डिक्रीज हो रहा है, देन क्वांटिटी डिमांड विल बी इंक्रीज्ड बाय ओनली 8%. कम ही इंक्रीज होगा. क्यों? Because it is inelastic demand. The elasticity is not in demand and it is in price. I hope this is clear. I hope this is clear. We have already studied elastic demand, slight change in price and more change in quantity demand, and in inelastic demand, more change in price and slight change in quantity demand. Okay. Now, first point, availability of substitutes. Children, if a commodity has many substitutes, okay, its demand will be elastic. Okay, but if a commodity has no or limited substitutes, its demand will be inelastic. Let's take an example and understand. It is elastic. Why? Because it has many substitutes. Many substitutes. For an example, tea, coffee. Let's suppose tea and coffee's price was 10 rupees each. But now what happened? The price of coffee has been decreased. Price coffee का कम हो गया. अब 8 rupees करके price हो गया coffee का. Let's suppose 8 rupees इसका price हो गया. Then quantity demand क्या होगा? टी का घट जाएगा और कॉफी का एकदम फटाफट बढ़ने लग जाएगा, है ना? So that is why it is elastic. Understood? And second part I have said you is that if a commodity has no substitutes or weak substitutes. Let's suppose milk has a substitute? No, na? So children, milk, salt, sugar, so these are the necessity things whether price rises or price falls, है ना? प्राइस में जो भी चेंजेस आ रहा है, क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं होगा. जितना रिक्वायरमेंट है मुझे, मैं उतना ही कंज्यूम करूंगी, राइट? जितना मुझे रिक्वायरमेंट होगा मैं उतना ही कंज्यूम करूंगी. सो दैट इज इनइलास्टिक. Coming to the second point, nature of the commodity. It is a very important determinant, very important factor, children. What does it saying? Whether it's a luxurious and comfort, yeah, it's a necessity. Luxurious and comfort will come under elasticity. Why? Because if price are falling, price अचानक से सेल लग गया. Let's suppose जुलाई अगस्त मंथ चल रहा है, सेल लग गया, तो क्या होगा? मेरा क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा. मैं जो शर्ट मुझे पहले 1000 में मिल रहा था वो मुझे 500 में मिलेगा, तो मैं 2 शर्ट परचेज कर लूंगी, है ना? तो मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ? इंक्रीज कर गया. तो ये इलास्टिसिटी में आया, है ना? नेचर ऑफ द कमोडिटी. एंड देन द अदर वन इज नेसेसिटी. नेसेसिटी इनइलास्टिक होगा. व्हाई इनइलास्टिक? बिकॉज वेदर प्राइस फॉल्स और प्राइस राइजेस, जो हमारा नेसेसिटी है वो तो हम खरीदेंगे ही, है ना? अगर बहुत प्राइस बढ़ भी गया तो भी मुझे उतना ही खरीदना है, प्राइस बहुत घट भी गया तो भी मुझे उतना ही खरीदना है. तो दैट मीन्स इट इज इनइलास्टिक. लेट्स सपोज टूथपेस्ट, है ना? टूथपेस्ट ले लिए हम एग्जाम्पल.
Third point, proportion of the income spent. It means the smaller the proportion of income spent on a commodity, the smaller will be the elasticity of demand, and vice versa. Which means the larger the proportion of the income spent on a commodity, the larger will be the elasticity of demand. तो अगर हम small ही amount expense कर रहे हैं कोई चीज में, मैं एक टूथपेस्ट में कितना ही एक्सपेंस करती हूँ 100 रुपया, अगर वो बढ़ गया 110 रुपया, तो मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, मेरे इनकम में 10 रुपए में क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। और लेट्स सपोज मुझे फर्नीचर खरीदना है जो 50,000 का, बट प्राइस बढ़ के 60,000 हो गया, है ना। प्राइस बढ़ के 60,000 हो गया तो क्या मैं परचेज कर पाऊंगी, या प्राइस घट के डायरेक्ट 40,000 हो गया तो मैं तो भग के जाऊंगी लेने के लिए, है ना। तो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, कितना इनकम हम स्पेंड कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा। अगर स्मॉल कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी स्मॉल होगा, अगर ज्यादा कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी लार्जर होगा। तो चिल्ड्रन, किस केस में इलास्टिक होगा एंड किस केस में इनइलास्टिक होगा? इट विल बी इलास्टिक व्हेन, जब हम जैसे मान लीजिए हम क्लोथिंग लिए, हम फूड नहीं, क्लोथिंग लिए, फर्नीचर लिए, तो वो इलास्टिक होगा। प्राइस फॉल हुआ तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा। एंड इनइलास्टिक कब होगा? जब हम टूथपेस्ट ले रहे हैं, सोप ले रहे हैं, हमारी नेसेसिटीज ले रहे हैं, ठीक है। नंबर 4, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी. The greater the number of uses to which a commodity can be put to, the greater will be the price elasticity of demand. Let's understand. See, if the price is very high, we will be using that commodity to a very limited extent. But if the price of that commodity falls, or the service of that the price of that service falls, then what we will be doing? We will be using it to numerous things. Let's take an example of electricity. If the price of electricity is very high, we will be only using for lighting and lighting purpose, है ना? But if the price of electricity has fallen, now we will be using it for cooking, okay, for lighting also, for cooking also, and for numerous things, है ना? We will be using that. So that comes under number of uses of a commodity. Next is possibility of postponement of consumption. See, if we can postpone things, if we can postpone the consumptions, then it comes under elastic. Okay, why? Because if let's suppose our luxurious items and clothing, if the price is risen to an extent, बहुत बढ़ गया है दाम, तो क्या आप परचेस करोगे? You will postpone it. चलो कोई बात नहीं, जब घटेगा तब हम लेंगे। बहुत लोग, जैसे मुझ जैसे लोग, वेट करते हैं कि जुलाई और अगस्त कब आएगा, सेल लगेगा और मैं तब परचेस करूंगी। मैं हाई प्राइस में नहीं परचेस करती, तो मैंने क्या किया? पोस्टपोन कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, आई विल परचेज इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त, बिकॉज दैट टाइम, दैट इज ईयर एंडिंग सेल लगता है ना। दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर इलास्टिक। बट द थिंग्स विच वी कैन नॉट पोस्टपोन, जो पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, क्या मैं पोस्टपोन कर सकती हूँ टूथपेस्ट खरीदना? आज मेरे घर पे टूथपेस्ट नहीं है, मैं जुलाई में खरीदूंगी? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। मुझे एवरी डे ब्रश करना है, राइट? मुझे एवरी डे नमक चाहिए सब्जी में डालने के लिए, राइट? तो दैट इज अ नेसेसिटी, तो दैट कम्स अंडर इनइलास्टिक विच वी कैन नॉट पोस्टपोन। ओके, नंबर 6 पॉइंट, प्राइस रेंज. Demand for a commodity will be elastic when the price will be moderate and inelastic when the price is very high or very low. ठीक है, let's take an example of a baguette bag. उसका प्राइस क्या होता होगा? 1000 या 2000. मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस इज 1000 to 2000. अब उसका प्राइस क्या हुआ? 50% रिड्यूस हो गया। तो जब 50% कम हुआ तो 1000 का बैग 500 में, 2000 का बैग 1000 में आ रहा है। तो अब क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड सुई से ऊपर चल जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या अंडर आएगा? इलास्टिक डिमांड के। अब इनइलास्टिक क्यों है? अब लेट्स सपोज लुई विटॉन का बैग जो 50,000 का है, अब उसमें 1000 रुपया कम हो गया, तब भी क्या आप परचेस कर पाओगे? उसके क्वांटिटी डिमांड में इफेक्ट पड़ेगा क्या? तब भी लोग फट से जाएंगे और जाके खरीद पाएंगे? नहीं खरीदेंगे। 50% कम हो गया, 25,000 का बैग है, तो भी आप परचेस कर पाओगे? मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो इट विल कम अंडर इनइलास्टिक। अब लेट्स सपोज नॉर्मल लोकल मार्केट में बैग है 400 रुपए का, 500 रुपए का, ठीक है, तो भी उसके क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा असर नहीं आएगा, क्योंकि जिसे खरीदना है 400 या 500 का बैग, वो परचेस करेंगे ही। थोड़ी मैं भी चले जाऊंगी लेने के लिए या आप भी चले जाएंगे लेने के लिए, वो तो मुझे पता है उतने का ही बैग लोकल मार्केट्स में मिलता है। बट इफ यू गो फॉर एनी ब्रांड्स, हाई ब्रांड्स,
तो क्या है कि हायर इनकम पीपल विल बी परचेजिंग, क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, और बहुत ही कम प्राइस है तो भी क्वांटिटी डिमांड में उतना डिफरेंसेस नहीं आएगा। बट अगर मॉडरेट प्राइस है और उस पर भी प्राइस घट जा रहा है तो क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंसेस आएगा। ओके, सो दैट कम्स अंडर प्राइस रेंज। फिर आता है नंबर 7 पॉइंट, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। क्या हैबिट है कंज्यूमर का? सो चिल्ड्रन, कुछ कुछ कमोडिटीज ऐसे होते हैं जिसपे लोग हैबिचुअल है, कहते हैं ना हैबिट है उसको, है ना, सिगरेट पीने का हैबिट है, तो वो क्या करेगा, वो तो सिगरेट पिएगा ही। अब प्राइस घटे या प्राइस बढ़े, सिगरेट का कमोडिटी कंजम्पशन तो उसको करना ही है, तो वो किस में आएगा, इनइलास्टिक में आएगा। इजी, लेट्स कम टू नंबर 8, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में क्या है, अगर मेरा इनकम बहुत ज्यादा है तो हम किस में आएंगे, इनइलास्टिक में आएंगे, क्योंकि हम हाई प्राइस गुड्स भी परचेस कर रहे हैं, जिससे क्या है, प्राइस हाई भी है तो क्वांटिटी डिमांड में उतना अंतर नहीं आ रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर पे अगर के व्यू से हम देखें तो क्वांटिटी डिमांड में उतना अंतर नहीं आएगा। बट अगर लो और मॉडरेट इनकम वाले हैं तो उस पे अंतर आएगा, इलास्टिक डिमांड में डिफरेंसेस आएगा। क्यों? क्योंकि जो मॉडरेट और लो इनकम वाले पर्सन होते हैं वो अगर प्राइस घट जाता है तो वो लोग क्वांटिटी डिमांड ज्यादा करते हैं। ओके, नाउ लास्ट चीज जो मैंने आपको बताना था, बूम, निमोनिक। निमोनिक बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। निमोनिक क्या है? निमोनिक हमने क्या करा था, सी मैंने आपके लिए एक निमोनिक तैयार किया है, अमेजिंग न्यू प्रोडक्ट्स नीड परफेक्ट प्राइस। अमेजिंग न्यू product needs perfect price, comma, happy interests. So this is the mnemonic which I have prepared for you all. You can easily learn factors affecting price elasticity of demand. से मैम ने एक mnemonic बताया था, amazing new product needs perfect price, happy interest। कैसे? amazing से A, availability of substitutes, new से N, nature of the commodity, okay, product से P, proportion of the income spent, नीड से एन, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, परफेक्ट से पी, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, पी से प्राइस, प्राइस रेंज, हैप्पी से हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, इंटरेस्ट का आई से इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सो आई हैव यू हैड अ हैप्पी लर्निंग। आपको समझ में आया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, प्लीज कीजिए। थैंक यू।